जय हिंद। आई एम मेजर सुनील डागर। आप जैसे ही एसएसबी में जाते हैं, फर्स्ट डे आपकी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होता है। और जिन लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होता है वो डे 2 में फेस करते हैं साइकोलॉजी टेस्ट। और साइकोलॉजी टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट होता है टैट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। प्लीज फॉर गॉड सेक इसको थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट या थीमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट या टीम एप्टीट्यूड टेस्ट ना समझें। इसका एक्चुअल फुल फॉर्म है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, एंड दिस इज द मदर ऑफ ऑल साइकोलॉजी टेस्ट इन एसएसबी। अगर आपका टैट अच्छा हो जाता है तो वैट, एसआरटी और सेल्फ डिस्क्रिप्शन लार्जली टैट को रीइंफोर्स करते हैं। तो आपकी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, जो बेसिक ट्रेड्स हैं, वो टैट से ही निकाले जाते हैं। और साइकोलॉजिस्ट जिस टेस्ट पे सबसे ज्यादा रिलाई करता है वो है टैट। तो आइए आज चलते हैं, देखते हैं प्रोसेस ऑफ टैट एंड हाउ टू अप्रोच टैट। क्योंकि टैट अपने आप में एक एनिग्मा बना हुआ है। बच्चे को समझ में नहीं आता कि साइकोलॉजी टेस्ट में जो है साइकोलॉजिस्ट वो टैट के थ्रू देखना क्या चाह रहा है। तो पहले शुरुआत करते हैं प्रोसेस से। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस फर्स्ट एंड देन विल सी हाउ टू अप्रोच टैट, राइट। तो आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट आपके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो इंस्ट्रक्शंस कुछ इस प्रकार देता है। दिस इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। इन दिस टेस्ट you are free to give your responses which are likely to be different from one person to another. In this test, you will be shown a set of pictures one after the other. What you are required to do is to write a story around the characters and the situation shown in the picture. You will write on each story, in each story, what led to the situation in the picture, what is going on, and what the outcome will be. You will also describe the feelings, thoughts, and action of the characters in each story. So, once you are writing this, put down your thoughts freely as they come to your mind, without any regard for the beauty of expression. Remember that you are not required to describe the picture, but to write a story around the picture. So, I repeat, remember that you are not required to describe the picture, but to write a story around the picture. Each picture will be shown to you for 30 seconds, and you will be given 4 minutes to write the story. Write the story in about 100 words each. You will be shown a total of 12 pictures, one after another. The 12th picture is going to be a blank picture. So the 12th picture is going to be a blank picture. So you'll have 11 stories, one after another, 30 seconds for the picture, 4 minutes to write the story. Likewise, 11 pictures. And 12th story is going to be a blank picture in which you are free to imagine any picture and you can write a story around this. So now I am going to show you one example. This sample picture is going to be just to give you a feeling of how the entire scheme will unfold. You are not required to write any story on this particular picture. So with this, the instructions come to an end. And once the instructions are given, immediately the first picture will be flashed, right? Now, this is about instructions. The way I said, there'll be 12 stories, 11 pictures, and for each picture you'll get first 30 seconds for each picture, and then 4 minutes to write the story. So 30 seconds for a picture, 4 minutes to write the story, another 30 seconds for the picture, 4 minutes to write the story, and likewise 11 times. After that, 12th will be a blank picture on which you are free to imagine any picture, and then you can write a story, right? So how to approach the 12th one, what to do with that, we'll discuss subsequently. Now, what is being tested? This is most important, right? What is being tested? So what we need to understand is whether it's psychologist, whether it's GTO, or whether it's interviewing officer,
all three are checking the same thing, that is your 15 officer like qualities, right? तो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं क्या और उनको कैसे चेक किया जाता है, तो वही 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यहां पे साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहा है थ्रू टैट वैट एसआरटी एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन, राइट? तो प्लीज बी क्लियर, राइट? Only the means are different. Psychologist is checking your 15 officer like qualities through pen and paper. चार टेस्ट दे रहा है आपको, टैट वैट एसआरटी एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन, और पेपर पे आप लिख रहे हैं। जीटीओ वही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक कर रहा है ऑन ग्राउंड, तो ही इज टेकिंग यू थ्रू अ बैटरी ऑफ 9 टेस्ट, और उसमें भी वही चेक किया जा रहा है जो एक साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहा है, लेकिन मीन्स डिफरेंट है। तो वहां पे ग्राउंड पे आपको ग्रुप टास्क करने हैं, आपको इंडिविजुअल टास्क करना है, आपको लेक्चर देना है, ग्रुप डिस्कशन देना, आपको ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करनी है, राइट? So the means are different, but the end goal is same. Similarly, interviewing officer is also checking officer-like qualities only, right? तो इसीलिए फाइनल डे जब आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस कॉन्फ्रेंस में जो तीनों पैनल मेंबर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तीनों बातचीत करते हैं और आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कितनी एग्जिबिट हुई उसको डिस्कस करके फाइनल डिसीजन बनाते हैं, राइट? सो नाउ हाउ टू प्रिपेयर। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट इज क्लोज टू यू कि सर क्या चेक कर रहे हैं वो तो समझ में आ गया, बट अभी प्रिपेयर कैसे करें, राइट? तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू दी थ्रू सर्टेन एलिमेंट्स विच विल क्लियरली एक्सप्लेन कि आप कैसे प्रिपेयर टैट को कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट अचीवमेंट्स। आपकी पास्ट में क्या अचीवमेंट्स रही हैं, दैट इज गोइंग टू हैव अ बिग बियरिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज यू राइट। बिकॉज साइकोलॉजिस्ट कर क्या रहे हैं, वो एक के बाद एक आपको पिक्चर दिखा के प्रेशर में डाल रहा है और आपके सबकॉन्शियस से निकाल रहा है कि आपके सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस लेवल पे पड़ा गया हुआ है। तो हाउ माइंड वर्क्स इज इट वर्क्स एट 3 लेवल्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियसली आप एफर्ट डालते हो अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दिखाने के लिए, बट व्हेन यू आर पुट अंडर प्रेशर, जब टाइम के अगेंस्ट आप रन करते हो, तो 1-2 स्टोरी तक तो आप कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हो, उसके बाद यू स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरीज एट सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल। तो सबकॉन्शियस में क्या पड़ा हुआ है वो निकालता है साइकोलॉजिस्ट। तो अब आपने क्या किस चीज पे ध्यान देना है कि आपकी पास्ट अचीवमेंट्स क्या हैं, और वो पास्ट अचीवमेंट आपकी कहाँ लिखी जाती हैं, आई एम श्योर यू नो दैट, एंड दैट इज योर PIQ। तो आपके PIQ में आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी हॉबीज, एनसीसी आपने किया है कि नहीं किया है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अचीवमेंट, स्पेशल अचीवमेंट्स, आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें PIQ में मेंशन्ड होती हैं, राइट? तो उस PIQ को आपने बड़े डीपली समझना है, राइट? PIQ फॉर्म को, because PIQ form is not just the base for interviewing officer, it is also the base for psychologist। आपके PIQ फॉर्म की 2 कॉपी बनती हैं, एक जाती है साइकोलॉजिस्ट को, दूसरी जाती है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी आपको ट्रेस कर रहा है कि आपके PIQ में क्या है और आपके ने यहाँ पे टेस्ट में क्या किया है, राइट? तो आप जब अपना टेट की प्रिपेयर कर रहे हैं तो लुक बैक, आपने क्या अचीव किया है। सपोज आप NDA के लिए जा रहे हैं, आप स्कूल कैप्टन थे या हाउस कैप्टन थे, सपोज आपने को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया, आपने डिबेट्स किया, डेक्लेमेशन किया, ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया, राइट? आपने जो है NCC भी किया है, या आपने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, आपकी हॉबी है लेट्स से बुक रीडिंग। तो जब वो पिक्चर आएगी और अगर आपने इन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट किया है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें की हैं लाइफ में, तो लेट्स से एक लड़का लड़की खड़े हैं, तो rather than writing at a fantasy level or rather than writing something which is just out of imagination, आपने बस सोचा कुछ एक फैंटेसी लेवल पे, एक विशफुल थिंकिंग आपकी है, तो आप तो एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाएंगे स्टोरी में। लेकिन अगर आपने पास्ट को रिफ्लेक्ट किया है ध्यान से, तो आपका गोल बड़ा सटीक मिलेगा। सपोज आपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, लड़का लड़की देखते ही आपको क्लिक करेगा, ये डिबेट डिस्कस कर रहे हैं, राइट? और जो सेंट्रल कैरेक्टर, आई एम जस्ट गिविंग यू वन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये लड़का जो है वो
अपने हाउस की डिबेट टीम का कैप्टन है, वो गर्ल्स से डिस्कस कर रहा है कि डिबेट में कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे ट्रॉफी जीतेंगे हम, राइट? तो प्लीज रिफ्लेक्ट। लाइकवाइज, इफ यू हैव हैड अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इन लाइफ, अगर आपने बहुत कुछ किया है 12th क्लास तक, एनडीए के लिए यू आर अ वंडरफुल मटेरियल। बट बहुत से लोग, बहुत से बच्चों को, बहुत से पार्टिसिपेंट्स को यही नहीं पता होता कि अपनी जो अचीवमेंट्स उसको यूज कैसे करना है। उसके लिए बेस्ट है रिफ्लेक्ट, बड़े ध्यान से अपनी अचीवमेंट को लिखें और फिर उसको बार बार सोचें कि अच्छा मैंने ये अचीव किया और कैसे अचीव किया था। मैंने अगर स्पोर्ट्स में नेशनल्स खेला है, लेट्स से फुटबॉल में नेशनल खेला है, तो मैंने नेशनल कैसे ट्रायल क्लियर किए थे, मैं कैसे नेशनल तक पहुंचा था, या नेशनल में भी लेट्स से फर्स्ट पोजीशन आई थी तो कैसे आई थी, हाउ डिड आई एग्जीक्यूट दैट। वही तो आपने अपने पिक्चर में लिखना है, राइट? अगर आपने लेट्स से थिएटर में अपना इंटर स्कूल कंपटीशन में अपने स्कूल को ट्रॉफी जिताई थी, हाउ डिड यू एग्जीक्यूट द प्लान, कैसे आपको वो ट्रॉफी जीती थी आपने। तो उन्हीं चीजों को जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, पाएंगे कि 12 स्टोरी लिखना तो बड़ा आसान है, तो आपने इतना कुछ अचीव किया, राइट? तो रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट अचीवमेंट। दूसरा कहाँ से निकलती है आपकी जो स्टोरीज? अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वहाँ पे ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ना स्पोर्ट्स होता है, ना कोई अपॉइंटमेंट बनाया जाता है बच्चों को। लेट्स से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है लाइफ में, कोई एडवेंचर पे भी नहीं लेके जाता है, राइट? तो अब अगर ऐसा ऐसा एक्सपोजर नहीं है तो व्हाट टू डू, राइट? उसके लिए तो उस ऐसे बच्चे के लिए तो पास्ट अचीवमेंट्स कुछ होंगे नहीं खास, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ऑब्वियसली एक उसके जो स्ट्रगल रहे हैं लाइफ में, रोल उसने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया होगा या टेक्निकल स्कीम के लिए अगर वो जा रहा होगा, तो उसने 70 80 90% पीसीएम में नॉन मेडिकल में स्कोर किया होगा। वो कैसे स्कोर किया, दैट ही कैन रिफ्लेक्ट ऑन और शी कैन रिफ्लेक्ट अपॉन। अलोंग विद दैट, अगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिच पास्ट नहीं है, कैन यू हैव एम्बिशंस? बिकॉज एम्बिशंस किसी की भी हो सकती है। आपको रिसोर्सेज नहीं मिले, नो प्रॉब्लम, बट आप एम्बिशंस तो हो सकती है ना। आप क्या बनना चाहते हैं? आप एनडीए के थ्रू आर्मी एयरफोर्स नेवल ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, या आप कोई बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप नासा ज्वाइन करना चाहते हैं, इसरो ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन हैव अमेजिंग एम्बिशंस, राइट? आप कैसे प्रिपेयर करें? रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट अचीवमेंट्स एंड थिंक अबाउट योर एम्बिशंस एंड थिंक डीप। रिफ्लेक्ट करें ढंग से, राइट? क्योंकि आपकी स्टोरीज इन्हीं दो में से निकल के आएगी। या तो आपने कुछ खास अचीव किया हो, अचीव नहीं किया तो एटलीस्ट आपकी एम्बिशन स्ट्रॉन्ग, राइट? वहां से आपकी स्टोरीज निकल के आएंगी, राइट? नाउ हाउ टू राइट स्टोरी, कि सर रिफ्लेक्ट भी कर लिया, राइट? हमें ये भी पता है कि वो ओएल क्यूज ढूंढ रहे हैं, हमने ये भी रिफ्लेक्ट कर लिया कि मेरी पास्ट अचीवमेंट क्या है और मेरी एम्बिशंस क्या है, राइट? बट नाउ हाउ टू राइट द स्टोरी, राइट? एक पिक्चर दिखा देते हैं सर, समझ में नहीं आता वो टू राइट, राइट? कई बार तो ब्लैंक हो जाते हैं, यही नहीं समझ में आता क्या लिखें। कई बार ये होता है कि देयर सो मच टू राइट एंड the child gets confused or the candidate gets confused, right? तो सबसे पहली रिलेट टू पिक्चर, पिक्चर से रिलेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पिक्चर कुछ होती है, आप कुछ और ही स्टोरी लिख देते हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड, प्लीज प्लीज डू नॉट लुक फॉर cheap SSB books because they'll spoil you. Most of these books are written by people who have never ever appeared for SSB. If they appeared, they could never clear SSB. So please do not go for cheap SSB books, right? वो आपको mislead कर देंगे। Now what happens is, जब आपको पिक्चर दिखाई जाती है तो आपकी स्टोरी उस पिक्चर में से निकलनी चाहिए। The way I said in the instructions, it was clear what led to this situation, what is going on, and what the outcome will be. So what led to this situation, पिक्चर में दिख रहा है आपको केस, वो क्या है, जो सिचुएशन है वो कैसे आई और क्या चल रहा है और क्या अचीव होगा। यू कैन नॉट हैव प्री कंसीव नोशंस। आप एक पहले से ही सोच के स्टोरी बना के ले आए और धक्के से उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट, रिलेट टू द पिक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोल रोल एग्जीक्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल रोल एग्जीक्यूशन, अगर आपको ये समझ में आ गया, मान लीजिए आप टेट क्लियर हो गया,
राइट। गोल, जो सेंट्रल कैरेक्टर है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है पिक्चर में। पहले सेंट्रल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना, उसको मेंशन नहीं करना कहीं, अपने दिमाग में आपने आइडेंटिफाई करना है। सपोज देयर आर 3 पीपल और 4 पीपल और 5 पीपल इन द पिक्चर, आपकी नज़र पहले सेंट्रल कैरेक्टर पे जानी चाहिए, बिकॉज यही एक अजम्पशन होती है किसी भी टैट सेट को प्रिपेयर करने के लिए। जो साइकोलॉजिस्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट, वो जो 12 पिक्चर्स है वो ऐसे ही कोई रैंडम पिक्चर्स नहीं उठा के डाली जाती हैं, उसकी एक सीक्वेंस होती है। आई विल बी कवरिंग सब्सिक्वेंटली, वो आने वाली वीडियोस में आई एम गोइंग टू कवर विद यू कि 12 जो पिक्चर होती हैं वो कैसे बनाई जाती है, राइट, कैसे उनकी सीक्वेंस अरेंज की जाती है, राइट। लेकिन उसमें एक बड़ी सिंपल सी अजम्पशन होती है कि बच्चा जो है सबसे पहले, कैंडिडेट जो है वो जिस भी कैरेक्टर पे सबसे पहले नजर जाती है और जिससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है उसी पे स्टोरी लिखता है, और उसके ट्रेट, उस सेंट्रल कैरेक्टर के ट्रेट एक्चुअल में बच्चे के कैंडिडेट के ट्रेट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो आपने सेंट्रल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको गोल देना है, राइट। द वे आई सेड, एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, राइट। व्हाट इज द गोल, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव? लेट्स से डिबेट ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, लेट्स से कोई थिएटर कंपटीशन है उसको जीतना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है उसको जीतना चाहते हैं, राइट। या लेट्स से अगर आपने उसको डीसी या एसडीएम बना दिया है तो वो किसी एरिया की प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, तो वन कुड बी डीसी, द अदर वन कुड बी एसडीएम, और वन कुड बी एसडीएम, द अदर वन कुड बी तहसीलदार, व्हाटएवर, राइट। तो बोथ ऑफ देम आर अथॉरिटीज। जो आपका सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक बिगर अथॉरिटी, एंड person is, that character is discussing with the other gender कि क्या इश्यूज एंड हाउ टू सोल्व देम, राइट। तो आप गोल कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग, कई कैंडिडेट्स पूरी टैट को एक इंग्लिश का पेपर मान लेते हैं कि 12 पिक्चर है, कुछ ना कुछ तो स्टोरी लिख ही देंगे और पास हो जाएंगे। नो, इट डजंट हैपन दैट वेज। आपको हर पिक्चर में अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एग्जिबिट करनी है, रिफ्लेक्ट करनी है। आपका गोल एक मंडेन गोल है, एक बड़ा नॉर्मल रेगुलर गोल है, कि आपका गोल एक हायर लेवल गोल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना बार कहाँ सेट कर रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं आप डिबेट कर रहे हो कि सिर्फ डिबेट कर रहे हैं, या डिबेट में आप फर्स्ट प्राइज लेना चाह रहे हो, आप सिर्फ स्पोर्ट्स खेल रहे हो कि आप नेशनल खेल रहे हो और नेशनल में आप गोल्ड मेडल लेना चाहते हो, राइट। तो व्हाट इज योर गोल, आप कितना हाई गोल सेट कर सकते हैं? तो दैट इज सेटिंग ऑफ द गोल। सबसे पहले तो आपने गोल को सेट करना है, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेटिंग ऑफ द गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना हाई गोल सेट कर रहे हैं। उसके बाद कमेंसुरेटिंग टू दैट आपने रोल भी देना है, राइट। सपोज गोल है नेशनल्स में गोल्ड लेना, तो जो सेंट्रल कैरेक्टर है, एक तो आप उसको सिर्फ प्लेयर बना दो, आपका कैप्टन है वो आपको गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, या लेट्स से मोटिवेट कर रहा है और आपने गोल्ड जीता। वन इज द सेंट्रल कैरेक्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज द कैप्टन, and she is motivating others, planning strategies, planning tactics, opponent को study कर रहे हैं, how the entire plan is being shaped by that central character, वो लीड ले रहा है और उसकी वजह से गोल अचीव हो रहा है, राइट। तो आप गोल के साथ रोल क्या दे रहे हैं उसको, उसको गेम कैप्टन का रोल दे रहे हैं, कि आप उसको जस्ट एक प्लेयर का रोल दे रहे हैं, या उसमें भी एक्स्ट्राज में बिठा दिया आपने, बिकॉज इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को उस टीम में, और टीम में भी हो कैप्टन की पोजीशन पे, राइट। तो दैट्स आल्सो एन इशू। आपको अपने आप को लीडरशिप रोल पे लाना ही होगा, राइट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गोल, और उस साथ साथ आप क्या रोल दे रहे हैं उसको, राइट। आप एक फॉलोअर का रोल दे रहे हैं कि आप एक लीडर का रोल दे रहे हैं, राइट। देन एग्जीक्यूशन। देखिए, गोल और रोल अपने आप में चैलेंज है, इनको गोल को सेट करना और कमेंसुरेटिंग टू दैट आप एक रोल असाइन करना सेंट्रल कैरेक्टर, लेकिन एग्जीक्यूशन तो और भी मुश्किल काम है। गुड कैंडिडेट्स दे इमीडिएटली नो कि एक गोल ये सेट हुआ, राइट, लेट्स से गोल्ड मेडल लेना, उसके लिए क्या एग्जीक्यूशन पॉइंट्स होंगे, कैसे कैसे क्या उस प्लान किया है, क्या स्ट्रेटेजी की,
कैसे ओपोनेंट्स को स्टडी किया, कैसे अपनी टीम को मोटिवेट किया, राइट, कितनी प्रिपरेशन की, कितना हार्डवर्क किया, सो ऑल दैट विल बी मेंशन्ड क्लियरली। और जो बच्चा फैंटेसी लेवल पे बात कर रहा है, विजुअल थिंकिंग में बात कर रहा है, उसको एग्जीक्यूशन पॉइंट नहीं मिलते हैं। वो घुमा घुमा के बीटिंग अराउंड द बुश, राइट, इसी स्ट्रेटेजी के साथ कोई भी स्टोरी लिख देता है। सेंट्रल कैरेक्टर है, वो ट्रॉफी जीतना चाहता है, फर्स्ट आना चाहता है, खूब मेहनत की, सबके साथ अच्छे से बात की मोटिवेट किया और गोल्ड जीत गए। नो, दिस इज वर्किंग एट अ फैंटेसी लेवल। बट आप एग्जीक्यूशन पॉइंट्स दो ना, कैसे उसने टीम को ऑर्गेनाइज किया, कैसे कोच साथ मिलके उसने स्ट्रेटेजी बनाई, दोस डिटेल्स हैव टू बी गिवन, राइट। कैसे उसने प्लेयर्स को स्टडी किया, क्या क्या वीडियो ऑडियो एड्स का इस्तेमाल किया, कौन कौन सी लेटेस्ट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया, राइट। तो डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। सो एग्जीक्यूशन इज इक्वल इंपॉर्टेंट, राइट। सो गोल, रोल एंड एग्जीक्यूशन। तो योर एग्जीक्यूशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको ये समझ में आ गया कि हायर गोल सेट करना है, उसी के साथ मिलता हुआ एक रोल देना है और उसको बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट कर देना है, आपका टास्क डन, योर टैट विल बी वंडरफुल। अगेन जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, गोल, रोल और एग्जीक्यूशन, इसी के लिए आपको चाहिए पास्ट अचीवमेंट्स। अगर आपके पास अचीवमेंट है पास्ट की, तो आप बड़े आसानी से, जैसे ही पिक्चर देखेगी फट से आपको याद आएगा कि अरे ऐसा तो मेरे साथ कुछ हुआ था। आई वॉज स्टैंडिंग विद अ गर्ल, डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमने डिबेट ट्रॉफी जीतनी है। आप वही गोल उठा के डाल दोगे, सेंट्रल कैरेक्टर को लीडरशिप रोल भी दे दोगे, और एग्जीक्यूशन पॉइंट्स खट खट खट, हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, वही आप लिख दोगे कि सेंट्रल कैरेक्टर ने ये स्ट्रेटेजी बनाई, एंड दैट्स हाउ दे अचीव देयर गोल, राइट। So this is very important. Now, next, please utilize available as well as hidden resources, right? पिक्चर में कुछ रिसोर्सेज हैं जो बड़े क्लियरली दिखते हैं, बट कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपको अज्यूम करने पड़ते हैं, राइट। दिस इज चेकिंग वेदर यू हैव द फंडामेंटल अवेयरनेस ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल आग लगी है, वहां पे आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है, वो एक अवेलेबल रिसोर्स है, बट कुछ हिडन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सैंड, फॉर एग्जांपल ब्लैंकेट, ये रिसोर्सेज वहां दिख नहीं रहे हैं, बट दैट गोज विद योर एक्सपीरियंस, योर कॉमन सेंस, या आपने जो बातचीत की होगी या कभी वीडियोस देखे होंगे फायर फाइटिंग के, तो आपकी जनरल अवेयरनेस उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? व्हेन यू मेक यूज ऑफ बोथ अवेलेबल एज वेल एज हिडन रिसोर्सेज, राइट। kindly do that, kindly use them, right. Next is planning and ideas. The way I said earlier also, the way you execute your goal, right, आप अपने प्लान को कैसे डिटेल डालते हैं और कैसे गोल को अचीव करते हैं, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप कैसे कैसे प्लान बना रहे हैं, इज इट अगेन वर्किंग एट अ वेरी फैंटेसी लेवल, या आप एक डिटेल प्लानिंग दे रहे हैं। दूसरा, कैसे कैसे आप आइडियाज यूज कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, राइट। आर यू यूजिंग टेक्नोलॉजी, आर यू यूजिंग कंटेम्पररी आइडियाज, क्या आप लेटेस्ट जो इंडस्ट्री में हो रहा है या लेटेस्ट जो आपकी सराउंडिंग्स में हो रहा है, आर यू यूजिंग दैट एंड अचीविंग योर गोल, और या आज भी आप वो घिसे पिटे 15 साल 20 साल पुरानी लिखी हुई किताबों से आइडियाज निकाल रहे हैं और अपना गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लास्ट 20 years, 15 years, 10 years, so many things have changed, so many say new developments have happened. In fact, the way world is moving, every month there are changes happening which are very very clearly visible. तो आपने कंटेम्प्रेरी चीजों को यूज करना है, आपने टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो आप जो गोल सेट कर रहे हैं, यूज कंटेम्प्रेरी थिंग्स, राइट, so that will help you. Next, goal versus dream. Now, what is the difference between goal and dream? So dream plus execution, or you can say dream plus effort. Dream plus effort is equal to goal. जब तक आप सपने ले रहे हैं, it is fantasy, it is a wishful thinking. लेकिन जैसे ही आप प्लान बना लेते हैं, एग्जीक्यूशन की डिटेल्स डाल देते हैं, then it becomes गोल।
आपके एफर्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एफर्ट्स आपने लगाए, दैट विल शोकेस योर ट्रेड्स। आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आपकी प्लानिंग कैसी है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कैसी है, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, कैसे आप इनिशिएटिव लेते हैं लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए। ना ऑल दोज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कैन इजीली बी टेस्टेड, कि आपके आइडियाज कैसे हैं, आपका प्लानिंग कैसी है, और आप अपने ड्रीम को गोल में कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, राइट? So that's very important. So go for goals and not just for dream, right? Okay, next, avoid preconceived stories. The way I said earlier also, relate to picture. आपकी story जो है वो picture से relate होनी चाहिए. Do not go for certain preconceived thoughts. आपने 40-50 stories तैयार कर ली, रट ली, you see a picture और उसमें force fit करने की कोशिश कर रहे हो, right? For example, 6 बंदे भाग रहे हैं, उन पे चेस्ट नंबर भी लगा हुआ है। नाउ दिस स्टोरी कैन इजीली बी रिलेटेड टू समथिंग व्हिच इज लेट्स से एथलेटिक्स ओरिएंटेड, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है। हाउएवर कुछ स्टूडेंट्स या कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एक चोर है, उसके पीछे 5 पुलिस लग रही है। यू थिंक चोर चेस्ट नंबर लगा के भागेगा, या पुलिस जो है वो चेस्ट नंबर लगा के भागेगी? कम ऑन, आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर चेस्ट नंबर है, इट हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, आप उस पर स्टोरी बनाइए ना, राइट? उसका गोल सेट कीजिए, स्पोर्ट्स में कोई गोल सेट कीजिए, फिर कमेंसरेटिंग टू दैट आप रोल दीजिए, एंड इफ पॉसिबल आप एक लीडरशिप रोल दीजिए, राइट? लेट्स से अगर ये एक क्रॉस कंट्री का इवेंट आपने बना दिया, क्रॉस कंट्री को जीतना आपका गोल हो गया, तो कमेंसरेटिंग टू दैट आपका रोल क्या होना चाहिए? मे बी वो गेम्स कैप्टन है, या एटलीस्ट एथलेटिक्स कैप्टन है, या हाउस कैप्टन है, और कैसे वो जिता रहा अपनी टीम को, या स्टेट टीम का कैप्टन है, या नेशनल टीम का कैप्टन है, राइट? तो आपका जो पिक्चर है और जो स्टोरी बन रही है, दे शुड बी रिलेटेबल, फोर्स फिट नहीं होना चाहिए। तो डू नॉट गो फॉर प्री कंसीव्ड स्टोरीज। तो इसको अवॉइड करने का क्या है कि आप पिक्चर पे स्टोरी की प्रैक्टिस तो करो, बट ये मत सोचो कि सेम पिक्चर आ जाएगी। सिमिलर कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, राइट? बट कि ऐसी पिक्चर आती है मैं तो यही स्टोरी लिखूंगा, नो, दैट्स रॉन्ग। नाउ वन थिंग प्लीज रिमेंबर, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप टाइम के अगेंस्ट प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज कई कैंडिडेट्स जो हैं वो बार बार पिक्चर देखते हैं और उस पर 15-20 मिनट में स्टोरी लिखते हैं। इनिशियली दैट मे बी द राइट स्ट्रेटेजी, आप शुरू कीजिए कि एक पिक्चर है, उस पर 20-25 मिनट सोच के आप उस पर एक स्टोरी बना रहे हैं। हाउएवर जब आप एसएसबी के पास पहुंच जाते हैं, एटलीस्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स प्रायर टू दैट, आप एक पिक्चर को लीजिए, टाइम कीजिए, 30 सेकेंड्स पिक्चर को देखो, 4 मिनट्स में स्टोरी लिखो, राइट? नाउ यू चेक इट, उस स्टोरी को आप चेक कीजिए कि क्या आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्या वो रिलेट हो रही है पिक्चर से, क्या उसमें आपने हाई गोल सेट किया है, क्या उसमें बराबर रोल दिया है आपने, क्या उसमें आपने एग्जीक्यूशन पॉइंट्स दिए हैं, क्या आपने प्लानिंग ठीक किया है, क्या आपने आइडियाज अच्छे दिए हैं, राइट? आर यू वर्किंग एट गोल लेवल और आर यू स्टिल हैविंग अ विशफुल थिंकिंग? फिर उसके बाद उस स्टोरी को छोड़ के एक उसी पिक्चर पे एक और स्टोरी लिखिए, राइट? तो आप चाहे 2 दिन में एक पिक्चर उठाइए, लेकिन उस पिक्चर पे एटलीस्ट 4 से 5 स्टोरी लिखो। पहली पिक्चर देखो, उस पर पहली स्टोरी बनाओ, उस पर रिफ्लेक्ट करो अगेंस्ट दीज पॉइंट्स, राइट? एक चेकलिस्ट बना लो, क्या ये चीजें आपने कवर की उस पिक्चर उस स्टोरी में? हाँ तो गुड, नहीं प्लीज कीप इट अपसाइड डाउन, दूसरा पेज लो एंड राइट अनदर स्टोरी, फिर उसको इन पैरामीटर्स के अगेंस्ट देखिए, राइट? आप देखोगे कि आप में पक्का इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो फिर आप तीसरी लिखिए। तो लाइक वाइज आप 4 से 5 स्टोरी एक ही पिक्चर पे लिखो, ताकि आपका माइंड खुले, राइट? आपका होराइजन वाइड हो। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थॉट प्रोसेस, वन इज कन्वर्जेंट, द अदर वन इज डाइवर्जेंट, राइट? कन्वर्जेंट थॉट प्रोसेस कैसा होता है कि आप स्पेसिफिक चीज को सोच पा रहे हैं, राइट? बहुत ज्यादा आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हो आप, बस एक स्पेसिफिक बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एक थॉट ले पा रहे हैं। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग इज एक ही पिक्चर पे आपको 5-6 अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं। तो पिक अप अ पिक्चर एंड ट्राई एंड डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग,
ताकि आप अलग अलग गोल से उस पिक्चर को रिलेट कर पाओ, ताकि जब वो 12 पिक्चर आए तो यू आर नॉट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज। तो डेवलप योर डाइवर्जेंट थिंकिंग, और डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए बेस्ट इज पिक अप अ पिक्चर एंड स्टार्ट राइटिंग वन आफ्टर अनदर 4 स्टोरीज। उसके बाद इफ पॉसिबल गो टू योर मेंटर, उनको दिखाओ कि सर मैंने ये, या मैम मैंने ये 4 स्टोरीज लिखी हैं, डू यू थिंक एनी ऑफ दीज इज गुड एनफ फॉर मी टू क्लियर टैट, या उस पर क्या गैप्स हैं, तो वो आप अपने मेंटर की हेल्प ले सकते हैं, राइट। ओके, देन जेंडर एंड एज, राइट। सी पिक्चर्स समटाइम्स मे बी वेरी क्लियर कि वो आपकी एज से रिलेटेबल नहीं है, बट दैट विल हैपन वेरी रेयरली। मोस्टली जो पिक्चर होंगी वो आपकी एज के आसपास होगी, राइट। तो उस पूरी पिक्चर में जो कैरेक्टर आपकी एज को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ट्राई कि आप उसको सेंट्रल कैरेक्टर पिक करें, राइट। सेकंड, उसका जेंडर मेल लें कि फीमेल लें, राइट। तो वट एवर इज योर जेंडर, ट्राई एंड स्टिक टू योर जेंडर, unless the other gender it's an imposing personality, right। आप बॉय हो लेकिन कैरेक्टर में साफ दिख रहा है गर्ल इज इन द अथॉरिटेटिव पोजीशन, और बाकी सबड्यू रखे हैं, क्लियर दिख रहा है कि शी इज गिविंग आउट इंस्ट्रक्शंस एंड अदर्स आर टेकिंग इट, तब ठीक है, राइट। so you may take the other gender, however largely stick to your gender, that will be more appropriate. Okay, in the end, the most important thing, whatever is the situation, whatever is the challenge shown in the picture, आपने स्टोरी में सॉल्यूशन निकालना है, आउटकम निकालना है, राइट। तो दैट आउट यू शुड बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। अगर आपकी पर्सनैलिटी ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, आप लाइफ में हमेशा सॉल्यूशंस को ही देखते हैं, प्रॉब्लम्स को कम देखते हैं, और प्रॉब्लम्स दिखती भी है तो उसका आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, देन यू आर cut for army, cut for air force, cut for navy, right? You are made for them. However, अगर आपने ऐसा ज़्यादा नहीं किया है, तो from now onwards start imbibing this habit of being solution oriented. आपने solution देना है, आपने अपनी स्टोरी में एंड में कुछ अचीव करना है, solution देना है, right? So that's very important, right? And I think most of you know this. Do not look for awards. पर्सनल अचीवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, राइट। बिकॉज आर्म फोर्सेस वी वर्क एज टीम्स, वी वर्क इन टीम्स, वी वर्क इन टीम ऑफ टीम्स, राइट। हम टीम की तरह काम करते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द आर्म फोर्सेस एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज मोर और लेस अबाउट आई मी माई सेल्फ, बिकॉज कट थ्रोटिज्म चाहिए, आप जितनी आगे निकलने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे ले जाएंगे इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे वी आर नॉट लुकिंग एट प्रॉफिट्स। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वी आर टीम ओरिएंटेड, हमें टीम में काम करना है, तो वी लुक फॉर अचीवमेंट्स ऑफ द टीम। आपने जो प्रेज भी करना है, प्रशंसा भी करनी है, तो डू इट फॉर द टीम। कुछ अचीव करना है, डू इट फॉर द टीम, राइट। तो बी अ टीम ओरिएंटेड प्लेयर, राइट। और वो जीटीओ में तो ऑब्वियसली आपके इतने सारे ग्रुप टास्क हैं, वहाँ पे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे ग्रुप में बिहेव करते हो, राइट। तो हियर अगेन डू नॉट लुक फॉर पर्सनल अवार्ड्स, लुक फॉर अवार्ड्स फॉर द टीम, राइट। सो दोज आर दी लेट्स से basics of that. What is the process, what to expect, right? What is psychologist looking at, how you can prepare for that, and what to factor in when you are writing the story. आपने किन किन factors पे ध्यान देना है जब आप story लिख रहे हैं या उसकी preparation कर रहे हैं, right? However, if you still have doubts, if you still want to know more, you know where to go. First, go to our channel. We are regularly updating with more and more videos on SSB, and you'll get your answers. Otherwise, you call us, call the expert, right? So the number is 70-150-82708. So call us. And if you need to prepare for SSB in detail, please come to us for offline sessions. Every time we run
2 weeks course, right? So that will happen offline. अगर आपको डिटेल में GTO साइकोलॉजी और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में जानना है, आपको एक्स GTO से मिलना है, एक्स साइकोलॉजिस्ट की देखरेख में काम करना है, एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर से अपने इंटरव्यू कराने हैं, प्रैक्टिस करानी है, तो come to us. We are Lead Academy based out at Sonipat, and number is given here, the website is given here, our social media handles are given. Please approach us, please talk to us. We'll be more than happy to help you, ताकि आप आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म को पहन पाएं. जय हिंद.